Hello students. Today we are going to start a new chapter, chapter 12, Heron's formula. Okay, first of all, let's see what is the use or importance of this formula. This formula is used to find the area of a triangle when its height is not given but all the sides are given, and we are not able to find the height of the triangle easily, and it is also helpful in finding the area of quadrilaterals. Okay, before proceeding, let's take a recap. Now because this formula से हम triangle का area find करते हैं, so let's discuss the types of triangles once. First is equilateral triangle, a triangle whose all sides are equal, all angles are equal, and each angle is 60 degree. Next is isosceles triangle, a triangle whose two sides are equal and angles opposite to those two equal sides are also equal, right? And next is right angle triangle, a triangle in which one angle is 90 degree. And next is scalene triangle, a triangle in which all the sides are equal and all the angles are unequal. Sorry, all the sides are unequal and all the angles are unequal. Both are unequal. तीनों में कोई भी side equal नहीं होती and कोई भी angle equal नहीं होता scalene triangle के case में. Okay, so next we see how to find area in different types of triangles. First is right angle triangle. तो राइट एंगल ट्राइंगल में वी आर हैविंग बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और आउट ऑफ दीज थ्री इफ वी आर गिवन टू, फॉर एग्जांपल बेस और हाइट गिवन है, तो डायरेक्टली वी कैन यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. विच वन इज दैट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? बट इफ बेस और हाइट में से अगर कोई साइड आपको गिवन नहीं है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड दैट. हाइपोटेन्यूज गिवन है तो फाइंड कर सकते हैं, एंड आफ्टर फाइंडिंग यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया. नेक्स्ट वी सी हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. So equilateral triangle में all the sides are equal. You can see here each side is 10 centimeter. If we draw a perpendicular from any of the vertices, it bisects the opposite side. Means यहाँ पे ये सामने वाली side भी 10 centimeter थी. जब यहाँ से एक perpendicular draw किया गया तो इसने सामने वाली side को ये क्या करेगी? Bisect करेगी, two equal parts में divide करेगी. तो ये आपके पास आ गई 5. If you name this triangle like this A, B, C and D, देन ए बी सी ट्राइंगल में अब आपके पास ए बी है, बी सी है. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड ए सी और यू कैन सी हाइट. यू कैन सी हियर वी गेट द हाइट एज 5√3. नाउ ये जो ए सी हाइट है दिस इज़ फॉर द होल ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल की भी यही हाइट है. दैट मीन्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी. कंप्लीट ट्राइंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं. बेस क्या होगा? बी डी. बी डी क्या है? 10 है, एंड हाइट कितनी आई थी? 5√3. तो यू विल गेट द एरिया एज 25√3. ओके, नेक्स्ट इज area of an isosceles triangle. In isosceles triangle two sides are equal. जो भी टू साइड्स इक्वल है, अगर यहाँ से इस वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो सामने वाली साइड को अगेन क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. एंड सामने यहाँ पे इसकी डिफरेंट साइड थी 8, बिकॉज ये आइसोसेलेस है तो 2 इक्वल है इसमें और एक अनइक्वल है. जो अनइक्वल है वो 8 है, तो 8 को बाइसेक्ट करने पर ये जो आपके पास आ गए पोर्शन, दो कितने आ गए? 4 सेंटीमीटर ईच, राइट? Now in this triangle again if you name this as A, B, C and this as D, तो A, B, C is a right angle triangle now क्योंकि perpendicular draw किया था. तो आपके पास A, B है, means hypotenuse base है 4 सेंटीमीटर. तो by using Pythagoras theorem आपके पास H यानी AC, AC की वैल्यू आपके पास आ गई 3 सेंटीमीटर. Then by using the formula half into base into height you will find the area of the whole triangle. Base क्या हो जाएगा? 8 एंड हाइट कितनी आई थी? 3. पुट कर देंगे वैल्यू एंड यू विल फाइंड द एरिया, राइट? नेक्स्ट वी सी हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्कैलिन ट्राइंगल. So in scalene triangle all the sides are unequal. You can see here A, B, C. These three sides are unequal and we are not given its height. So what to do? Height है नहीं हमारे पास, but we know the only formula that is half into base into height. So now here is your solution, that is Heron's formula. Whenever the height of the triangle is not given, you can find the area by using Heron's formula. Means Heron's formula हमें ऐसे triangle की area
फाइंड करने में हेल्प करता है जिसकी हमें हाइट नहीं गिवन है, साइड्स गिवन है ओनली, राइट. सो नेक्स्ट वी सी व्हाट इज द फॉर्मूला. You can see here Heron's formula for finding the area of triangle is square root of s into s minus a into s minus b into s minus c, where a b c क्या है, sides of the triangle. And what is s here? S means semi perimeter. Perimeter क्या होता है, sum of all the sides of a triangle, तीनों sides का sum, और उसका जो half है वो होता है semi perimeter, means semi perimeter या half of perimeter. So s का फॉर्मूला क्या हो गया, a plus b plus c upon 2, क्योंकि a plus b plus c क्या है, perimeter, upon 2 कर दिया, क्या हो जाएगा, semi perimeter, right. So by finding s and then putting in this formula you will get the area of triangle, and by using Heron's formula. Okay, let's start exercise 12.1. Question number 1 is, a traffic signal board including school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If the perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? Although it is an equilateral triangle, so we can find the area by another method also, means by drawing perpendicular, but here in the question it is mentioned that you have to find by using only Heron's formula. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइड्स क्या गिवन है, तीनों ही ए है, ईच साइड ए. तो एस फाइंड करेंगे, एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी. एस इज इक्वल टू, फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. बट तीनों क्या है, ए है, तो ए प्लस ए अपॉन 2 हो जाएगा, दैट इज 3a/2. नाउ हीरोन्स फॉर्मूला से फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. तो ए बी सी ऑल आर ए. नाउ इट विल बी एस माइनस ए होल क्यूब हो जाएगा, बिकॉज तीनों सेम हो गए. नाउ एस की वैल्यू आपके पास क्या है, 3a/2, और इनसाइड द ब्रैकेट भी 3a/2, ए ही है. इसको सॉल्व करने पर यू विल गेट √3/4 a², राइट. एंड मार्क माई वर्ड्स हेयर, ये जो फॉर्मूला है √3/4 a², ये आपका एज अ डिफरेंट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डायरेक्टली, मीन्स आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की सिर्फ साइड गिवन होगी, तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो उसका एरिया फाइंड करने के लिए. और ये प्रूफ आपके सामने एक तरह से ये प्रूफ भी हो गया कि कैसे ये एरिया आया, कैसे ये फार्मूला आया. ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास एरिया तो ये आ गया, लेकिन अभी ए की टर्म्स में, और हमें यहाँ पे पेरीमीटर भी गिवन था 180 सेंटीमीटर. एंड बाय यूजिंग पेरीमीटर आई थिंक वी कैन फाइंड द साइड also, right. So next is perimeter is 180 centimeter, and perimeter का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड का सम, a plus a is equal to 180 centimeter. So 3a is equal to 180 and a क्या हो जाएगा, 180/3, that is 60 centimeter, right. नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अभी फाइंड किया था √3/4 a². ए हमारे पास आ चुकी है 60, ए की वैल्यू पुट करेंगे 60, यू विल गेट 900 √3 cm². √3 की वैल्यू इफ़ यू आर गिवन इन द क्वेश्चन देन यू विल पुट, अदरवाइज लिव इट, राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 from the same exercise. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? Means एक फ्लाईओवर की जो ट्रायंगुलर वॉल है वो यूज़ की जा रही है एडवर्टीज़मेंट के लिए. आपने देखा होगा रोड साइड पे बैनर्स और एडवर्टीज़मेंट पेंटिंग की होती है, जो भी किसी भी तरीके से बैनर्स लगे होते हैं एडवर्टीज़मेंट के लिए. तो इस सिमिलरली इस क्वेश्चन में उसी की बात हो रही है कि एक फ्लाईओवर की एक साइड वॉल जो है वो एडवर्टीज़मेंट के लिए यूज़ हो रही है, और एक कंपनी उस वॉल को हायर करती है 3 मंथ्स के लिए, और उस वॉल का जो चार्जेस हैं वो पर ईयर 5,000 मीटर स्क्वायर के लिए, पर ईयर पर मीटर 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹5,000 है. तो कंपनी उसे हायर करती है 3 मंथ्स के लिए, तो उसे कितना रेंट देना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमें उस वॉल का एरिया चाहिए होगा, बिकॉज यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है. तो आपको जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है. तो पूरा एरिया आप फाइंड करेंगे ट्राइंगुलर वॉल का, एंड देन यू कैन ओनली फाइंड द कॉस्ट टोटल. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन.
Yes. Now the sides of the triangle are ABC. Let them A, B, and C. A is 122, B is 22, and C is 120. So first of all, we need to find semi-perimeter, yani S. S will be equals to 132 meters. Next, by using Heron's formula, you can see area of triangle is given by S into S minus A into S minus B into S minus C. एस की वैल्यू आपके पास है 132 मीटर, ए आपके पास है 122 एंड बी इज 22 एंड सी इज 120. सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज हेयर you will get 1320 means 1320 मीटर स्क्वायर, राइट. ये स्क्वायर रूट यूज़ करने के लिए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. हाउ? सी 10 और 110 में एक और 10 है तो 10 पेयर में आ गया. सिमिलरली आप नंबर्स को पेयर में कन्वर्ट करके और उसको स्क्वायर रूट सॉल्व कर सकते हो. नो नीड टू मल्टीप्लाई एंड देन फैक्टराइज, वो लंबा हो जाता है मेथड, राइट. नाउ जो अर्निंग वो जो एडवर्टीजमेंट के लिए वॉल की चार्ज हो रही है वो 1 ईयर के लिए यानी 12 मंथ्स के लिए ₹5000 चार्ज हो रही थी. बट हमारा जो एरिया आया वॉल का वो 1320 है. इट मीन्स इतने एरिया के लिए ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा गया. आप एक और स्टेटमेंट इससे पहले लिख सकते हैं कि अर्निंग बाय एडवर्टीजमेंट इन 1 ईयर ओके पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ₹5000. यहाँ पे पूरे एरिया जो एरिया है हमारा उसके लिए सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे. बट हमें तो 3 मंथ्स के लिए फाइंड करना है तो पहले 1 मंथ के लिए सॉल्व कर लेंगे. 1 मंथ के लिए करने के लिए क्या होगा? डिवाइड बाय 12 एंड देन 3 मंथ्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 3. So you get the total rent to be paid by the company is ₹16,50,000. Okay, that the company had to pay to the एडवर्टीजमेंट जो भी उसके लिए ऑनर है, गवर्नमेंट है, जो भी है, ठीक है. ओके, द क्वेश्चन नंबर 3 इज there is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. ओके, पार्क में एक स्लाइड है, मीन स्लाइड वाला जो झूला होता है वो है, उसकी जो साइड वॉल है उस पर पेंट किया जा रहा है और वो पेंट करने के बाद एक मैसेज वहाँ पे लिखा जा रहा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. तो वो जो वॉल है उसकी डायमेंशंस पे आपको गिवन है, मीन्स तीनों साइड्स गिवन है. लेट देम बी ए, बी एंड सी. बट आपको वो एरिया फाइंड करना है जो पेंट किया गया है. दैट मीन्स उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. ए बी सी हमारे पास है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड सेमी पेरीमीटर. एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट एस इज इक्वल टू 16 मीटर. ओके, so by using Heron's formula we have S into S minus A into S minus B into S minus C, and we found the value of S as 16 meter. So by putting the value of S here, and A हमारे पास था 15, B था 11 and C है 6. So by putting all the values you will get this, and after solving you will get 20√2, and this is the required area painted in color in the park, that is 20√2 meter square. That's it.